Greetings of the day, student. So this is Turbo C++ environment. Until now we were discussing our programming session in this Turbo C++ environment. In this video we are going to shift to a new environment called CodeBlocks. But before we shift into the new environment, I just wanted to discuss a couple of things related to this environment. I had told you guys that these are some simple programming, any program menu, any software menu that we have: file, edit, search, and other menus like project, options, and window and help, right? So you should have seen it, or you should have explored it, right? If no, or you can explore it in future. If you find any doubt, you can ask me. Okay, these are not like scientific menus that you need to go into detail, but you should see from shallowly, very shallowly, that what you can do with these things. Okay, it can come handy at times. So run and compile, those were two simple things that we saw. File has some feature like open, new, and save. So until now we haven't saved any project, or I haven't showed it in a video. I'll just show it quickly. We had done it in lab sessions. So whenever you click on save project, it will give you something like this dialog box. So what you have to do is, you don't have to remove the whole naming string. You just have to remove till bin. See turbo C3 and bin. It is a path where your program is saved. Remember that path. Whatever that path comes in your computer when you open turbo C, that will be the path where your file has been saved. So where is my file? C drive, turbo C3 folder, and inside that bin folder, and inside that I have my program called, let's say, example1. I am giving it the name ex1.c. so ex1.c. Okay, as we had discussed, we don't give file names with spaces. Okay, जैसे ही हम वेरिएबल नेम्स के रूल्स पढ़े थे, वैसे ही रूल्स फाइल नेम को भी हम लगा सकते हैं. सो आई सजेस्ट कि आप फाइल नेम को स्पेसेस यूज करना अवॉइड करें, या फिर उसको नंबर से स्टार्ट करना अवॉइड करें, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करना अवॉइड करें. दे सकते हैं, पर अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है. ओके, सो दोज आर सम सजेशंस, दोज आर नॉट रूल्स. ओके, सो इफ यू कैन फॉलो इट, I'll just quickly click on OK. So ex1 मेरी फाइल सेव हो चुकी है. So whenever you run a program, or if you are writing a long program, it's a good practice to save program after every certain interval, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. So if there is an electricity cut, if there is anything, इलेक्ट्रिसिटी का पुराने ज़माने में होता था, पर अभी अभी क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो लाइट चली जा सकती है. डेस्कटॉप लैपटॉप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू हैव बैटरी इन इट, राइट? But it's a good practice to save program every 15 or 20 minutes or 10 minutes. Okay, it's up to you. So ये एक simple data type वाला program था, example था, जिसको मैंने नाम दिया ex1. I have saved it. We know the compile and run phenomena, so I'm not going to detail into it. आप ये menus explore कर सकते हैं. If you wish to ask anything, you can post it in Google Classroom or reach out to me. Right? So I'm just gonna shift right now, or we can go to the bin folder. As I said earlier, मेरा प्रोग्राम कहाँ सेव हो रहा था? सी ड्राइव में, टर्बो C3 फोल्डर में. बिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरा प्रोग्राम सेव हो रहा था. आई गिव इट नेम ex1. सो ex1 नाम का सी प्रोग्राम फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है. यू कैन जस्ट एडिट इट. ओके, सो जो भी प्रोग्राम वहाँ पे लिखा हुआ था आप यहाँ पे दे सकते हैं. काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि हम जो सी प्रोग्राम लिखते हैं हम उसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में से दूसरे एनवायरनमेंट में कॉपी करना अलाउड नहीं है. पर ये आपका सिंपल विंडोज़ एनवायरनमेंट ही है. आप यहाँ से अपना पूरा एग्जाम्पल वन प्रोग्राम कॉपी करके कोई भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में पोस्ट कर सकते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस एक्सरसाइज व्हेनेवर यू विल सबमिट योर प्रोग्राम. आपको ये काम लगेगा अगर आपने टर्बो सी में लिखा हुआ है तो. अगर आप कोई भी फाइल टर्बो सी में लिखते हैं तो ध्यान रखिए आप उसको कहाँ सेव कर रहे हैं, तो वहाँ से वो फाइल आप कॉपी करके उसको आप कहीं पे भी सबमिट कर सकते हैं. सो whenever we are going to do our assignment, you can submit your file here, from here. If you are doing it in turbo C++, if you are doing it in CodeBlocks, then it's not a issue. We'll see where we can get our files in CodeBlocks. Okay, so ये CodeBlocks नाम का कोड एडिटर है. तो आज हम इसमें शिफ्ट होने वाले हैं. But before we shift into this, let me just quickly tell you how to download it. I'll shift into Chrome. मैंने क्या सर्च किया हुआ है? CodeBlocks download. Okay, you can search any string. So generally CodeBlocks download की साइट खुलेगी, उसका पहला पेज कुछ इस तरीके से होगा. Okay, what you have to do is download the binary release. Okay, when you click on download binary release, it will open some file or dialog box like this. Your version is Windows obviously, so you can download Windows file from here. Setup. Okay, it has two mirrors or two sources. One is sourceforget.net and FOSS. इन दो सर्वर्स पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं. Whatever you choose, if you click on it,
it will redirect it to that site and it will start downloading. After installing the CodeBlocks, okay, after installing the CodeBlocks, this is the first screen that you will see. If it asks for some settings, you can just click on OK. You can just come to this screen, create a new project. We have to create a new project in CodeBlocks, or you can go to File menu, New, File, New, and select New Project. This thing and the thing I clicked in File menu, both are same. We have to just create a new project. Remember that we have to select console application, no empty project, no other menus right now. Okay, काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोडिंग कोड ब्लॉक में हो सकता है, but we are using console application right now. I'll click on go. Okay, next question that it is asking me is C or C++. I am coding in C, so I'll select C language. Okay, प्रोजेक्ट टाइटल मैं अभी के लिए क्या दे रहा हूँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. मेरा प्रोजेक्ट टाइटल है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. ओके, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. कंपाइलर है GNU GCC कंपाइलर है मेरा. काफ़ी सारे और भी कंपाइलर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंपाइलर है और डिफरेंट कंपनी के कंपाइलर है. जैसे टाइनी सी कंपाइलर है, वो सी लैंग्वेज का ही कंपाइलर है, पर टाइनी कंपनी नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है. फिर सिगविन कंपाइलर है GCC, वो सिगविन नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है. काफ़ी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के कंपाइलर हैं, कुछ C++ के भी कंपाइलर हैं जो डिफरेंट कंपनी ने बनाए हुए हैं. पर हम कौन सा कंपाइलर यूज़ करते हैं, GNU GCC कंपाइलर डिफॉल्ट. इस सिलेक्शन में कुछ चेंज नहीं करना है, इट इज़ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली. Okay, so moving forward, if I click on finish, as soon as I click on finish, you will see a blank window. Okay, but यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में हमारे जो सिलेक्टेड नाम का प्रोजेक्ट था यहाँ पे आ चुका है. मैंने अपने प्रोजेक्ट के नाम पे पीछे .c नहीं लगाया, क्योंकि प्रोजेक्ट एक फोल्डर होता है. ओके, फोल्डर के अंदर सोर्सेस नाम का दूसरा फोल्डर है और उसके अंदर main.c फाइल है. सबकी प्रोजेक्ट के अंदर सी फाइल का नाम सेम होगा, main.c. ओके, बट सबके प्रोजेक्ट का नाम अलग अलग होगा. प्रोजेक्ट नाम के पीछे .c लगाना नहीं, उसके अंदर main.c नाम की फाइल ऑलरेडी आपको कोडब्लॉक्स क्रिएट करके देगा. सो कोडब्लॉक खोलते ही main.c फाइल पे डबल क्लिक करते ही कुछ मुझे रेडीमेड कंटेंट मिला हुआ है सी प्रोग्रामिंग का. मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा बहुत. ओके, सो इफ यू कैन सी, मुझे ऑलरेडी कुछ रेडीमेड कंटेंट मिला हुआ है, पर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उससे हम फेमिलियर नहीं है इस चीज़ों से, तो वो चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ. stdlib से हम फेमिलियर नहीं है, मैं उसको हटा के इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे conio.h. ओके, सो conio.h लिखा हूँ. इंटीजर मेन है, हम इंटीजर मेन से फेमिलियर नहीं है, हम क्या यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, void main. सो मैं void main लिख देता हूँ, printf hello world, और हम रिटर्न 0 की जगह पे क्या लिखते हैं, get ch लिखते हैं. ओके, और हम printf से पहले क्या लिखते हैं, clr scr, क्लियर स्क्रीन. ओके, सो क्लियर स्क्रीन पे आ गया है. तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिल्ड में जाके प्रोग्राम को बिल्ड करूँगा. whenever I'll build the program, I'll see whatever the problems are there in the program and whatever are mistakes I have made. So yes, so first mistake is clear screen related. What it says, implicit declaration of function clear screen. Okay, clear screen function को वो use नहीं करता. क्यों नहीं करता, इट हैज़ अ रीज़न. मैं उसको पहले कमेंट कर देता हूँ और प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ. दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट वी हैव ऑलरेडी लर्नड. एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है, conio.h फाइल के साथ एसोसिएटेड है. सो इस फाइल का भी मुझे कोई काम नहीं है. conio.h फाइल मैं रख सकता हूँ, कोई गलत बात नहीं है, पर इट इज सिमिलर टू द टास्क दैट आज कोई सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं है और आप उस सब्जेक्ट की बुक लेके आ गए हैं. ओके, सो नोबडी माइंड्स इफ यू कीप द बुक. सो सिमिलरली क्लियर स्क्रीन एक डेफिनेशन है, एक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन किसमें है, conio.h में है. पर अगर आप कोई एक फंक्शन ही यूज नहीं कर रहे हैं जिनकी डेफिनेशन उस फाइल में है, तो उस फाइल को कैरी करके प्रोग्राम को बर्डन देने का कोई मतलब नहीं. सो आई एम रिमूविंग दैट फाइल ऑल्सो. ओके, सो मैंने कमेंट की है, ये टेक्स्ट प्रोग्राम में है पर वो टेक्स्ट प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा. ओके, हमने उसको कमेंट कर दिया गया है. सो क्लियर स्क्रीन और std.h को कमेंट कर दिया है. सो अगेन आई गो इनटू बिल्ड एंड बिल्ड क्या है, सिमिलरली टू कंपाइल जैसा ही है. ओके, और रन को हम क्या करेंगे, रन ऑप्शन है. सो पहले मैं अगेन एक बार इसको बिल्ड कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ इफ देयर इज एनीथिंग मिस्टेक इन द प्रोग्राम. फाइन, मुझे वार्निंग दिखा रहा है प्रोग्राम में, 0 एरर्स है, 2 वार्निंग्स है. ओके, सो एरर्स और वार्निंग में डिफरेंट क्या होता है, पहले मैं बता चुका हूँ कि वार्निंग है तो प्रोग्राम रन होगा. ओके, देयर इज नो फैटल थिंग कि प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट प्रोग्राम इज रनेबल. बट इफ there is an error, program has some fatal problems and program cannot run. So what does it say, it says integer is main is not an integer function. Okay,
उसको इंटीजर मेन के साथ काम करने की आदत है, इसीलिए वो वार्निंग दे रहा है. बट बिफोर दैट वी हैव टू वी हैव टू सॉल्व द क्लियर स्क्रीन इशू. सो मैं इसको पहले एक बार रन करके देख लेता हूँ. एज सून एज आई रन द प्रोग्राम यू विल सी आई विल गेट अनदर विंडो. मुझे एक पूरी नई विंडो मिली है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा हुआ है. मेरी कोडिंग विंडो पीछे है, मेरी जो आउटपुट विंडो है वो आगे है, एज यू कैन सी. ओके, सो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ. तो क्लियर स्क्रीन वो क्यों यूज नहीं करता? बेसिकली क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं कि हमें पुराना आउटपुट अपनी स्क्रीन पे से क्लियर करना हो. पहले जब हम टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे थे तब हमने देखा कि टर्बो सी प्लस प्लस में जब प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो सेम विंडो में आता है. जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं उसी विंडो में उसको हटा के हमारा आउटपुट आ जाता है. पर जब हम यहाँ पे प्रोग्राम रन कर रहे हैं you have to always build the program first and then run. Otherwise you can choose the build and run option. Okay, I'll suggest कि आप build and run option हर बार choose करें. So I'll simply build and run it. Again see, नई विंडो खुली हुई है, मेरी पीछे एडिटिंग विंडो अलग है. So हर बार मैं नया बोर्ड यूज कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने बोर्ड का एग्जांपल लिया था. If I do some board work on the first day when we are meeting, अगर हम उसी क्लास में दूसरे दिन मिलते हैं तो पहले मुझे पुराने क्लास वाला बोर्ड वर्क क्लियर करना पड़ेगा. पर अज्यूम करिए कि मैं हर बार क्लास में एक नया पोर्टेबल बोर्ड लेके आता हूँ. जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे हर बार प्रोग्राम रन करते वक्त नई विंडो मिल रही है और वो विंडो में तब मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, उसको डिलीट कर दे रहा हूँ. तो मुझे विंडो को क्लियर करने की कोई जरूरत है नहीं. दैट इज वाई क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज नॉट यूज्ड. राइट, सो आई एम रिमूविंग द क्लियर स्क्रीन फंक्शन एंड conio.h फाइल. बाद में वो हमें दो चीजों में एरर दे रहा था, एक तो गेट ch फंक्शन में और इन void main में. सो हम उसको जिसके साथ काम करने की आदत है वही चीजें दे देते हैं ताकि हमें वो कोई भी वार्निंग शो ना करे. ओके, सो हम दो चीजों को चेंज कर रहे हैं. हम void main की जगह integer main कर रहे हैं. ओके, सिमिलरली whenever you write integer main तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट get ch की जगह पे क्या होगा, रिटर्न स्पेस 0. ओके, ये मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप है, यानी कि उसको मेन फंक्शन को बता रहा है कि मुझे 0 एज अ कोड देना. रिटर्न 0 का मतलब है 0 कोड है, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो चुका है. यू कैन एग्जिट द प्रोग्राम वेरी नाइसली इफ देयर आर नो मिस्टेक्स इन द प्रोग्राम. इसका ये मतलब होता है, पर वो याद रखने की जरूरत नहीं. वॉइड मेन है तो गेट ch लिखेंगे लास्ट में. इंटीजर मेन है तो क्या लिखेंगे, रिटर्न 0 लिखेंगे. हमारा प्रोग्राम रेडी है. इफ आई जस्ट बिल्ड द प्रोग्राम देन यू कैन सी there are no warnings and no errors in the program. Okay, zero warning, zero errors. Then I'll build and I'll simply run it. Build करने के बाद अगर आप रन करें तो नो प्रॉब्लम, वन बाय वन कर सकते हैं. अगर आपको वो ऑप्शन पसंद नहीं है तो यू हैव सिंपल ऑप्शन बिल्ड एंड रन. ओके, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हमारी ये विंडो खुली हुई है ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल, तब दूसरी बार आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं रनिंग के. ओके, तो अगर आपके रन वाले ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, वो हाईलाइटेड नहीं है, उसका मतलब है आपकी कोई एक विंडो खुली हुई है. सो फर्स्ट क्लोज दैट विंडो एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई रनिंग द प्रोग्राम अगेन. आई विल जस्ट शो यू. सी, यहाँ पे कोई भी चीज क्लिकेबल नहीं है. अगर आप बिल्ड एंड रन में जाएंगे यहाँ पे भी कोई भी चीज क्लिकेबल नहीं है. इसका मतलब है कि मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम रन हो रहा है, मेरा आउटपुट उसमें दिख रहा है. So I'll just quickly switch to that thing and I'll close it. Right? So ये हमारा प्रोग्राम है. हमने दो चीजें चेंज की. एक तो हमने क्लियर स्क्रीन निकाल दिया. क्लियर स्क्रीन निकाल दिया तो conio.h फंक्शन भी चला गया और void main की जगह पे हम integer main यूज कर रहे हैं और रिटर्न 0 यूज कर रहे हैं. प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है. इसका फायदा ये है कि whenever you run the program, जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं कोड ब्लॉक्स में, वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, आपको उसको सेव करने की जरूरत पड़ती नहीं है. बट इफ अ प्रोग्राम इज लॉन्ग देन बिफोर यू फर्स्ट टाइम रन इट यू शुड सेव इट. ओके, बाकी कोई भी चेंज नहीं है प्रोग्राम में. इसमें हम वो सारे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हम वहाँ पे लिख रहे थे. मैं आपको एक बार हमारा एरिया ऑफ सर्कल वाला प्रोग्राम दिखा देता हूँ. आई जस्ट एडिट इट, quickly pick it up from here. Okay, and I'll go back to this thing and I'll paste it here. Do we have paste option? Okay, so हम conio नहीं यूज करते हैं, conio को हटा देता हूँ. void main की जगह हम क्या यूज करते हैं, integer main यूज करते हैं. Fine, and then we don't use clear screen and at last we have return 0. Okay, our program is good to go. Simply build and run. Fine, enter the value of radius. Program is up and running. I have entered 7.3. okay, and according to that I'm getting the answer area of circle. area of circle statement दो बार आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल के हिसाब से लिखा है यहाँ पे. फाइन, बट इट इज करेक्ट. ओके, सो क्विकली
go through this. Thank you.